Good morning all the students of class 12th. Today I am going to start the next topic of the chapter 3rd, aldehyde, ketone and carboxylic acid, that is method of formation of ketones only. In the last videos we have already discussed the method of formation of aldehyde and ketones both, and also the method of formation of aldehyde only by the Stephan reaction, by the Rosenmund reaction, by the Itard reaction, and also the important naming reaction, that is Gattermann-Koch synthesis. Now the next preparation of ketones, formation of ketones, only there are three important methods of formation of ketones. There are three important methods of preparation. First, acyl chlorides, second from nitriles, and third from benzene or substituted benzene. All these three are important reaction of formation of ketones only. So one by one we discuss here. Okay, let us see from acyl chloride. From acyl chloride. Acyl chloride means RCOCl. Compounds are known as acyl chloride or acyl halides. When acyl chloride reacts with dialkyl cadmium, ketones are obtained. जब एसाइल क्लोराइड रिएक्शन करता है डाईएल्किल कैडमियम के साथ, दैट इज डाईएल्किल कैडमियम, देन ketones are obtained. That ketone is unsymmetrical ketones are symmetrical depend upon the number. Like here, that is unsymmetrical ketone is obtained. But the formation of dialkyl cadmium first takes place by the reaction of Grignard reagent with कैडमियम हैलाइड. जब गिग्नार्ड रिएजेंट कैडमियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका क्या बनता है? डाईएल्किल कैडमियम बनता है. और साथ ही साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा, बाहर निकल जाते हैं. एंड दिस डाईएल्किल कैडमियम reacts with acyl halide gives ketones. Reacts with acyl halide gives ketones. That ketones is symmetrical or unsymmetrical. Okay, means reaction of acyl chloride with cadmium dialkyl gives ketones, but this dialkyl cadmium obtained by the reaction of Grignard reagent with cadmium halide. जैसे यहाँ देखिए ये रिएक्शन होगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये आपका CD, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा एल्काइल ग्रुप, ये प्लस बाकी माइनस, तो ये हो गया 2R2CD. ओके, बचा क्या है यहाँ पे 2MgX और Cl, मतलब MgXCl हमने लिख दिया और साथ ही साथ क्या किया, आगे 2 लगा दिया, 2MgXCl. अब जो बना डाईएल्किल कैडमियम, यही जो डाईएल्किल कैडमियम बना, ये डाईएल्किल कैडमियम एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, डाईएल्किल कैडमियम बनाता है
और साथ ही साथ आपका क्या बना, डाई एल्किल कैडमियम के साथ रिएक्शन कर जाता है तो कीटोन बनाता है और कैडमियम क्लोराइड फिर से ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ देखिए एक बार हमने कैडमियम क्लोराइड लिया और अब वो कैडमियम क्लोराइड इस रिएक्शन में बार बार हमें मिल जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये क्या है, कैटलिस्ट है। यूज किया, रिएक्शन हुआ गिगनार्ड के साथ, क्या बनाया, डाई एल्किल कैडमियम बनाया। वह डाई एल्किल कैडमियम एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया और वह एसाइल हैलाइड कन्वर्ट हो गया कीटोन में और फिर से कैडमियम क्लोराइड बचा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें केवल 2 का अमाउंट ही तो बढ़ाना पड़ता है बेटा। एक हमें अमाउंट बढ़ाना पड़ा किसका, गिगनार्ड रिएजेंट का बढ़ाना पड़ा RMgX का, और सेकेंड हमें किसका, एसाइल हैलाइड का अमाउंट यूज करना पड़ा। ओके ओके, अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स। यस, फ्रॉम नाइट्राइल्स, when nitriles react with Grignard reagent like phenyl, magnesium bromide, that is propyl nitrile, when propyl nitrile reacts with phenyl magnesium bromide in the presence of ether followed by hydrolysis gives propiophenone which is a ketone. Means when nitrile react with Grignard reagent followed by hydrolysis gives ketone. नाइट्राइल जब रिएक्शन करता है किसके साथ, गिगनार्ड रिएजेंट के साथ, तो हाइड्रोलिसिस होने पर क्या देता है, कीटोन देता है। अब एग्जांपल हमने लिया प्रोपाइल नाइट्राइल CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N reacts with Grignard reagent that is phenyl magnesium bromide in the presence of ether. This phenyl magnesium bromide breaks into plus minus as a result this also breaks into plus and minus at this position plus charge. So this phenyl attach with this carbon and remaining group attach with this nitrogen. The compound is obtained CH3CH2 single bond C, one bond is break, double bond N, that N attach MgBr and C attach C6H5, means CH3CH2 single bond C double bond N MgBr and C6H5. Okay, this compound, intermediate compound, again unstable and on hydrolysis gives propiophenone CH3CH2 that is C2H5 single bond C that is MgOHBr, product is obtained, vast product MgOHBr. Okay, that is C2H5 C double bond O single bond C6H5 and the byproduct is MgNOHBr. That compound is called ketone C2H5 C double bond O single bond C6H5, that is propiophenone and IPAC is 1-phenyl IPAC is 1-phenyl propanone, 1-phenyl propanone, 1-phenyl that is, and propanone 1 2 3 carbon. Okay, that is from nitriles
also ketone is obtained when reaction of nitriles takes place with Grignard reagent. Unstable compound is obtained and then that unstable compound gives ketone. Example CH3 CH2 C triple bond N plus C6H5 MgBr. That C6H5 attached at that carbon where the triple bond is present. CH3 CH2 C6H5 C double bond N MgBr on hydrolysis gives the main compound, that is propiophenone. This propiophenone on reaction with the compound, this propiophenone on reaction with the compound, unstable compound gives propiophenone C2H5 C double bond O single bond C6H5 and the byproduct MgNOH Br is obtained. Next reaction, from benzene are substituted benzene. When benzene are substituted benzene is treated with acid chloride. When benzene are substituted benzene treated with acid chloride in the presence of anhydrous AlCl3, corresponding ketone is obtained. Corresponding ketone is obtained and this reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction. Okay, benzene या substituted benzene like toluene when reaction with acid chloride in the presence of anhydrous AlCl3, corresponding ketone is obtained. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction. Okay, Friedel-Crafts acylation reaction. Benzene react with aromatic or alkyl acid halide in presence of anhydrous AlCl3 gives ketone, and this reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction. How this reaction proceed? Any one position of the benzene, the hydrogen displaced by the Cl of the acid halide and the remaining product attach at that carbon. Like in benzene, H from this position displaced by the acid halide ion. In this reaction, halide ion behaves as nucleophile and H behaves as electrophile. So this nucleophile displaces electrophile in the presence of anhydrous AlCl3. Aliphatic or aromatic ketone is obtained. Aliphatic or aromatic ketone is obtained means C6H5 C double bond O single bond aromatic or aliphatic. Okay, diphenyl ketone or methylphenyl ketone is obtained. Clear? So it is all about your method of formation of ketones only. 3 important reaction by the acyl chloride from nitriles and the last from benzene or substituted benzene, and last reaction is an important naming reaction, Friedel-Crafts acylation reaction. Acylation because in this reaction the reagent is acid halide is used. If alkyl halide used, then the reaction is alkylation, but in this reaction acyl halide is used, so the reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction. Okay, yes, now we do some in text question of this chapter.
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन स्ट्रक्चर दिए गए हैं इसके हमें प्रोडक्ट बनाने थे, फाइंड आउट करने थे, ठीक है ना। मैंने पहले से यहाँ बना दिया है ताकि आपको समझाने के लिए इजी हो जाए बेटा। और आपकी बुक में पेज नंबर 364 पे दिया हुआ है, 12.2 क्वेश्चन नंबर है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इन दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कलेक्टिवली, मेथड ऑफ एल्डिहाइड ओनली, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, केमिकल रिएक्शंस आर गिवन। यहीं से ये सब क्वेश्चन बने हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे सपोज कीजिए ये फर्स्ट रिएक्शन आपका दिया है और इसमें से आपको पूछ दिया है प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आपको करना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये आपको याद होना चाहिए कि ये है क्या, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड है। और ये एसिड हैलाइड जब बेंजीन से रिएक्शन करता है तो कौन सा होगा, बेंजीन का कहाँ पढ़ाया हूँ, फ्रॉम बेंजीन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, फ्रॉम बेंजीन लास्ट रिएक्शन फॉर्मेशन फ्रॉम बेंजीन और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। और किसके प्रेजेंस में था, एनहाइड्रस AlCl3 अभी मैंने पढ़ाया। और इसी को कहा गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl ब्रेक होगा, यहाँ से H ब्रेक होगा और कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। और रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल फेनिल कीटोन, एथिल फेनिल कीटोन, एथिल फेनिल कीटोन। यही आपका मेन प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बन गया। तो रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो रिएक्शन आप पढ़ते हैं, जैसे आपने आज पढ़ा क्या, कीटोन पढ़ा, तो कीटोन के कितने नेमिंग रिएक्शन अलग से हैं वो आपके माइंड में सेट होने चाहिए। अगर मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन पूछ रहा है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या रिएक्शन किसके साथ होगा, फ्रॉम एसाइल हैलाइड के साथ होगा। सेकेंड क्या होगा आपका, फ्रॉम एसाइल हैलाइड होगा। और सेकेंड रिएक्शन आपका होगा फ्रॉम नाइट्राइल्स। थर्ड रिएक्शन आपने पढ़ा क्या, आपने पढ़ा फ्रॉम बेंजीन। तो ये बेंजीन से रिएक्शन हुआ। सेकेंड देखिए, कुछ पहचान गए हैं आप, C6H5CH2 ट्वाइस CD एसिड हैलाइड, फिर से एसिड हैलाइड यहाँ भी यूज हुआ। और मैंने अभी पढ़ाया था फ्रॉम एसाइल हैलाइड डाई एल्किल कैडमियम, तो ये डाई एल्किल है और ये कैडमियम हो गया। अब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे एसिड हैलाइड के साथ ये क्या देगा बेटा, ये क्या देगा आपका, फिर से वही रिएक्शन हो जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पता था CD और Cl मिलके क्या बना देंगे, CdCl2 डबल मॉलिक्यूल आपको दिया है। तो यहाँ से CD, यहाँ से Cl2, 2 Cl2 CdCl2, बाकी आप जोड़ दीजिए C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे 2 यूज हुआ, 2 हमने लगा दिया, 2C6H5 हो गया। यहाँ पे फिर 2CH2 हो गया, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O 2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, CH3 हो गया, 2 मॉलिक्यूल कंप्लीट। तो यही कंपाउंड बना जिसका नाम क्या है, कीटोन। ये भी क्या बना, कीटोन ही बना। बस यही रिएक्शन फिर से लिखना था। तो आप जब समझेंगे रिएक्शन को तो आसानी से कर पाएंगे, और नहीं समझेंगे तो उलझन होगी, प्रॉब्लम होगी। इसका यही सलूशन है कि आप बातों को, रिएक्शन को बार बार रिवाइज कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन जितने रिवाइज होंगे स्टेप बाय स्टेप उतने ही आपको फायदे हैं। ओके, लास्ट नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, मैंने पढ़ाया था ये रिएक्शन किसका है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने का मेथड था। यहाँ देखिए रिएक्शन में क्या दिया है। अब एग्जाम में फंसाता कैसे है आपको, यहाँ दे दिया है एथाइन दैट इज प्रोपाइन। ये कंपाउंड क्या है, प्रोपाइन, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, मेथ एथ प्रोपाइन हुआ। अब आपका प्रोपाइन का जब रिएक्शन होगा किसके साथ, प्रोपाइन का रिएक्शन होगा Hg के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में। अब किसके साथ दिया, कुछ दिया ही नहीं। तो आपको मैंने पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड,
from the hydrocarbons and that hydrocarbons too from alkenes and from alkynes, and by the alkynes, when alkynes gives aldehyde, then addition of water takes place. हाइड्रेशन होता था, किसके साथ होता था? H2SO4 के साथ, किसके प्रेजेंस में? Hg के प्रेजेंस में प्रोपाइन से होता था। तो यहाँ पे आपको वाटर ऐड करना होगा बेटा, मतलब इसको आपको ध्यान में देख के देखना होगा रिएक्शन। तो ये क्या बनाएगा यहाँ से? ये H2 हो गया, दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे यहाँ से बेटा, दोनों बॉन्ड जब ब्रेक होंगे, यहाँ से एक ही बॉन्ड, सॉरी यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब 2 H2 आके इस पे जुड़ जाएंगे, हो जाएगा क्या? CH2, यहाँ से क्या? CH, और इसी से डबल बॉन्ड बनाएगा कौन? आपका डबल बॉन्ड बनाएगा क्या? ऑक्सीजन। तो क्या बनाएगा? CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। अब जो ये कंपाउंड बना इसका क्या नाम है? 1 2 3 प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड। ओके, लास्ट रिएक्शन देखिए, ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बता पाएंगे। इटार्ड रिएक्शन मैंने आपको बताया था, इटार्ड रिएक्शन क्या होता था? ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन केवल एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में स्टीफन, रोजेनमुंड, इटार्ड और गाटरमान कोच रिएक्शन मैंने पढ़ाए थे। तो याद कीजिए बेटा अच्छे से, इटार्ड रिएक्शन में होता क्या था? जब क्रोमिल क्लोराइड, इसका क्या नाम था? इसका क्या नाम था बेटा? क्रोमिल क्लोराइड। व्हेन क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 रिएक्ट्स विथ नाइट्रोमेथिल बेंजीन, रिएक्ट्स विथ पैरा नाइट्रोमेथिल बेंजीन, ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा, इसीलिए पैरा नाइट्रोमेथिल बेंजीन या पैरा नाइट्रोटॉलुइन कहते हैं। रिएक्शन होगा और क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। तो आपको बताया था एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता था क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस होने पर क्या बनता था? एल्डिहाइड। तो आपको दोनों एक साथ लगा दिया है। आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं लिखना है, केवल मेन प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो बस क्या कीजिए, CH3 से डिस्प्लेस कीजिए 2 हाइड्रोजन को और वहाँ पे लिख दीजिए CHO, और यहाँ पे क्या था? जो NO2 था वो एज सच NO2 के फॉर्म में ही पाया जाएगा, वो आपका NO2 के फॉर्म में ही पाया जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो गया आपका? इटार्ड रिएक्शन। ऑल दीज रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट आर आस्क यू बाय द स्ट्रक्चर, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कन्वर्जन आता है, यही कन्वर्जन है। इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जन। आई कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस रिएक्शन फाइंड आउट द रिएजेंट। जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम बेंजीन। कीटोन से बेंजीन बनाने में, बेंजीन से कीटोन बनाया गया, तो इसमें क्या रिएजेंट क्या यूज हुआ है? एसिड हैलाइड। वहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या यूज हुआ? एनहाइड्रस AlCl3। सॉल्वेंट क्या यूज हुआ? CH2। ओके, अंडरस्टैंड? Okay, thank you. Revise the topic and if any doubt then ask me.